Hey guys, so what's up? So this is your educator Adarsh Raj, and I am back with another awesome lesson in physics. So we are doing the current electricity for NEET. This is the lesson number 7, and so far we have done the Ohm's law. Now we are doing combination of resistors in this lecture. Okay, and you know this concept about the magical stick. So this is Mr. Harry Potter having the magical stick. You have the magical click. So please subscribe the channel and like and share the video if you like it. So let us begin. So if we talk about the combination of resistor, then there are two combination. Particularly, one is series and one is parallel. So when the resistance are connected end to end, they are called resistance in series. So you can see here there are three resistance I have taken: resistance number 1, resistance number 2, and resistance number 3. So this is the first resistance, this is the second resistance, and this is the third resistance. So there are three resistance here. These resistance are connected with some voltage. Now when the particular resistance are in series, so the resistance having different potential difference, but in particular branch the current will be same. Okay, so we say that if I is the amount of current that flowing through this circuit, then the voltage drop across the first resistance is IR1, voltage drop across the second resistance is IR2, and the third resistance is IR3. Okay, from here we can calculate that the net resistance of the circuit is R1 plus R2 plus R3. I am not doing the derivational part because we are not here for boards, we are here for cracking the NEET exam. So we can directly say that the net resistance of a series circuit is R1 plus R2 plus R3. Now what you have to remember is, if n identical resistance are connected in series, say this is R connected with another R connected with another R, and there are n number of resistors. So the net resistance R net will be equal to N into R. You have to remember this point, the first point. The second thing, if we talk about the R net, then this R net must be greater than any individual resistance R1, R2, Rn तक किसी भी रेजिस्टेंस से जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो बड़ा होगा, और नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, एन आर होगी, अगर सारे सेम है। इफ R1 बराबर R2 बराबर R3 हो जाए, अगर सारे R के हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा रेजिस्टेंस इन सीरीज। बिल्कुल इजी है, आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करती है हर रजिस्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो अलग होता है, लेकिन जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का, वो हर रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके सम के बराबर होता है। ये हम लोग डायरेक्टली ओम्स लॉ से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दोनों सबकी वोल्टेज जो होगी वो किस रेशियो में होगी, तो हमें ये याद रखना है कि जो वोल्टेज होगी सीरीज में वो डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिवाइड होती है। किस में डिवाइड होती है, डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में। सीधा क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप भी आ सकता है। ठीक है, सो द रेशियो ऑफ V1 टू V2 टू V3 मस्ट बी इक्वल टू R1 रेशियो R2 रेशियो R3। ठीक है, चलो अब इससे हम लोग सीखते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अब देखो बेटा, अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है, ठीक है, किसी वोल्टेज के अक्रॉस सीरीज में, तो हम पहली और सेकंड रेजिस्टेंस के बीच जो इनका पोटेंशियल ड्रॉप है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वोल्टेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में। डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो बेटा इस चीज को ध्यान रखो। देखो, जो फर्स्ट हमारा है रेजिस्टेंस, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज जाएगी वो कितनी जाएगी, उसका खुद का रेजिस्टेंस R1 मल्टीप्लाई बाई द मेन वोल्टेज, यानी कि जो बैटरी की वोल्टेज है V, अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2। तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेकंड के अक्रॉस वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, V2 इज इक्वल टू R2
खुद की रेजिस्टेंस इनटू में V अपॉन में R1 प्लस R2। सो ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी सेकंड रेजिस्टेंस। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान ये रखना है बच्चों कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है, या जो वोल्टेज आती है वो क्या आती है, वो आती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। तो जिस रेजिस्टेंस के अंदर आप निकालने वाले हैं उसके रेजिस्टेंस को नेट वोल्टेज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, जैसे सॉल्व करके देख लेते हैं। सपोज करो कि मेरे पास ये दो रेजिस्टेंस हैं सीरीज में और मैंने इनको कनेक्ट कर दिया एक 100 वोल्ट बैटरी के साथ। ये 100 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये मेरे पास है 30 ओम का रेजिस्टेंस और ये मेरे पास है 70 ओम का रेजिस्टेंस और 100 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, बिल्कुल इजी लेके चल रहे हैं। तो देखो, अगर मैं कहता हूं इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप V2 है, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, V1 की वैल्यू आ जाएगी नेट वोल्टेज 100 मल्टीप्लाई बाई सेम रेजिस्टेंस जिसके अंदर हमने निकालना है 30 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस का सम 100। तो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया 30 वोल्ट। ठीक है, और V2 की वैल्यू देखें तो आप सीधे 100 माइनस 30 भी कर सकते हैं, बट अगर मैं फॉर्मूले वाइज देखूं तो 100 इंटू 70 अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में 100। तो कितना आ गया बेटा, 70 आ गया। तो आप देख रहे हो कि इसका रेजिस्टेंस 30 था तो इसकी वोल्टेज 30 आ गई, इसका रेजिस्टेंस 70 था तो इसकी वोल्टेज भी 70 आ गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस पे। ठीक है, तो आगे बढ़े। चलो अब बात करते हैं पैरेलल में। तो जब भी रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट होते हैं जिस तरह की उनका फर्स्ट एंड यानी कि सभी का फर्स्ट एंड कनेक्टेड हो आपस में और सभी का सेकंड एंड भी कनेक्टेड हो आपस में, तो इसे हम कहते हैं पैरेलल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, R1 R2 और R3 इन तीनों का जो फर्स्ट एंड है ये आपस में कनेक्ट है। ऐसे ही R1 R2 और R3 का जो सेकंड एंड है वो भी आपस में कनेक्ट है बच्चों। जब ये तीनों आपस में कनेक्ट हैं तो इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात ये होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच रजिस्टर वो इक्वल होता है। यानी कि जो R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V1, R2 के अक्रॉस आएगा V2 और R3 के अक्रॉस आएगा V3, वो सेम होगा। इसी का फायदा उठा के हम लोग निकालते हैं नेट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है बेटा उसका नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, 1 बाई आर पैरेलल इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया, जैसे मान लो ये आ गया सिंपल, ये हमारे पास एक 6 ओम का रेजिस्टेंस, ये हमारे पास 3 ओम का रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में। तो अगर ये पैरेलल में बेटा तो इनका अगर मैं पूछता हूं कि नेट कॉम्बिनेशन क्या आएगा, तो 1/6 प्लस 1/3 आप करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे 1/r, फिर आप इसका 1/r की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसको इन्वर्ट करेंगे। तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं, आप सीधे क्या लिख सकते हैं, आर नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, R1 इंटू R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18/9। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 वोल्ट। सिंपल। तो 6 इंटू 3 अपॉन में 6 प्लस 3 इज इक्वल टू 18/9 इंटू 2 वोल्ट, सीधे निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं जो कि आपस में पैरेलल में, ये हो गए बच्चों दोनों रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में हो गए, ये हो गया R1 और ये हो गया R2, ये दोनों आपस में पैरेलल में है। तो जब ये दोनों आपस में पैरेलल में है तो हमारा जो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो क्या आ जाता है बेटा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये आप सीधा याद रख लीजिए, R1 प्लस R2। अब अगर हमारे पास n रेजिस्टेंस आ जाते हैं बेटे, n रेजिस्टेंस, तो n रेजिस्टेंस हैं और उसका नेट रेजिस्टेंस पूछा जाए, अगर सारे रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, सभी के सभी आइडेंटिकल है और जिनकी वैल्यू R के बराबर है, ठीक है, तो नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाता है बच्चों, नेट रेजिस्टेंस आ जाता है R/N। कितना आ जाता है, R/N। और सबके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी होती है, सेम होती है ना। तो वोल्टेज का जो रेशो आ जाता है वो कितना आ जाता है, V1:V2:V3 अप टू ब्ला ब्ला ब्ला। कितना रेशो आएगा बेटा, 1:1:1।
लेकिन करंट का जो रेशो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, I1:I2:I3। वो जो रेशो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। तो यहां पे जो करंट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसको मैं समझाता हूं, इसका कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे पास वोल्टेज था तो वोल्टेज में तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया था, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया था। लेकिन अगर हमारे पास दो ब्रांच आ जाए और इन दोनों ब्रांचेस में अलग अलग करंट निकालनी पड़े तो क्या करना है, देखो बेटा, I1 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, I1 इज इक्वल टू मेन करंट I जो हमारे पास याद रखी है, मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस। तो देखो हम किस ब्रांच में निकालना चाहते हैं, हम फर्स्ट ब्रांच में निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट ब्रांच के लिए हम अपोजिट रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तो R2 अपॉन में नेट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ये इसकी करंट दे देगा। और अगर आप I2 की करंट निकालना चाहते हैं तो मेन करंट I मल्टीप्लाई बाई, अब इसके लिए आपको अपोजिट रेजिस्टेंस R1 लेना पड़ेगा, तो R1 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इसको करते हैं। ये है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन में जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, इसलिए करंट का जो रेशो आता है वो इनवर्स रेशो ऑफ रेजिस्टेंस आता है। वोल्टेज का जो रेशो आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रेजिस्टेंस, तो सेम रेशो ऑफ रेजिस्टेंस आता है। आ रही बात समझ में। तो अब यहां पे देखो मैंने I1 और I2 आपसे निकाल के दिखाया। अब मैं इसी के बेसिस पे अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, चलो इसी के बेसिस पे मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, जैसे क्वेश्चन मैंने कहा कि R1 की जो वैल्यू है वो है 3 ओम और R2 की जो वैल्यू है वो है 6 ओम, और जो मैंने बैटरी अप्लाई की थी यहाँ पे, नेट अप्लाई बैटरी थी, वोल्टेज जो थी वो थी, मैं कहता हूं 50 वोल्ट। तो बताइए I1 और I2 की वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो हम बेटा मेन करंट निकालेंगे। मेन करंट की वैल्यू क्या आएगी, मेन करंट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी बच्चों, वो आएगी I1 या I इज इक्वल टू नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज है 50, नेट रेजिस्टेंस है पैरेलल कॉम्बिनेशन का मैंने क्या सिखाया था, 6 3 जा 18/9, तो यह जाएगा 2। तो नेट करंट आ जाएगी 25 एम्पियर। कितनी आ गई बच्चों, 25 एम्पियर। तो अगर नेट करंट 25 एम्पियर आ गई तो I1 की वैल्यू आ गई नेट करंट 25 मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस 6 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस 6 + 3 9। अब यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे गलती ये करते हैं बच्चों कि वो क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस में नेट रेजिस्टेंस लिख रहे हैं, नेट नहीं लिखना है, टोटल लिखना है। तो दोनों का सम, तो 2 3 जा 6 और 3 से काटना पड़ेगा, तो 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा 50/3। तो देखो इसमें करंट कितनी चली गई, 50/3 एम्पियर। अब इसमें चेक कर लेते हैं I2, तो I2 में वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, I2 में वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25 मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस दैट इज 3 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 6 + 3 यानी कि 9, 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो 25/3 आ जाएगा, या 50/6 भी कह सकते हैं हम। तो यहाँ पे 25/3 आ गया। जब आप टोटल करोगे तो इन दोनों के जो आप टोटल करोगे तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 25 ही मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इससे आते हैं बच्चों। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो आगे हम लोग बात करते हैं। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लेस देन द लीस्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। हमें पता है अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, नेट रेजिस्टेंस होगा, वो सबसे छोटे वाले से भी छोटा होता है। ठीक है, अगर आइडेंटिकल है तो R/N होगा, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सोचो अगर N वायर्स हैं जिन सबका रेजिस्टेंस R है, अगर उन्हें एक पॉलीगॉन में बना दिया गया, पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, अलग अलग, मान लो ये मैंने यहाँ पे ये बना दिया, मैंने आपको ये मैंने, है ना, तो ये 5 साइड्स का हो गया, पेंटागन हो गया। ऐसे ही पॉलीगॉन मतलब बहुत सारे साइड्स के। तो रेजिस्टेंस अक्रॉस एनी 2 एडजेसेंट कॉर्नर, एडजेसेंट का मतलब ये वाले कॉर्नर, इन दोनों के बराबर या इन दोनों के एडजेसेंट में या इसका इसके साथ। तो एडजेसेंट का मतलब होता है 1 का 2 के साथ हो, या 2 का 3 के साथ हो, या 1 का 4 के साथ हो, या 5 के साथ हो। ऐसे एडजेसेंट कॉर्नर का आंसर आता है N-1
अपॉन n इंटू आर, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स कह लो या नंबर ऑफ वायर्स कह लो। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये पेपर के लिए, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास n आइडेंटिकल रजिस्टर्स हैं, RS और RP इनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो RS बाई RP जो होता है वो होता है n स्क्वायर बाई 1। ये भी एक रिजल्ट है जो आप सीधा याद रख सकते हैं। ये सब रिजल्ट पे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में, तो ये रिजल्ट आप याद रखो और पेपर में सीधा आंसर निकालो। ठीक है बच्चों, चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक वायर है ऑफ रेजिस्टेंस 4R, तो हमारे पास एक वायर थी जिसका रेजिस्टेंस था 4R। अब इसको एक सर्कल बना दिया गया है, तो इस वायर को एक सर्कल बना दिया गया, तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द डायमीटर। अब इसके डायमीटर के एंड्स में क्या होगा, तो अगर ये 4R थी बेटा, तो ये हो जाएगा L/2 और L/2, लेकिन एरिया में तो कोई फर्क किया नहीं है, तो L/2 है। इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस हो गया 2R और इसका रेजिस्टेंस भी हो गया 2R। अब 2R और 2R पैरेलल में आ गए, तो 2R/2 आ जाएगा, तो इसका नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। समझे बच्चों, 2R/2 क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि आइडेंटिकल 2R और 2R कितनी बार लगे हुए हैं, 2 बार लगे हुए, तो 2R/2 कर दिया। मैंने अभी सिखाया था R/N, तो सीधा आंसर निकाल सकते हैं इससे। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन था। तो अगर आपको ये लेसन पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बढ़ावा दे सकते हैं मुझे, ताकि मैं आप लोगों के लिए और फ्री वीडियोस और फ्री लेसन्स ला सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।